Good morning, students. Today we will start lesson number 9, India Social Life of SST Standard 7. India is a vast country in the continent of Asia. We all know that India is a vast country. It is country of bewilderingly great diversities. In our country, we find a lot of diversities. We have a lot of people with different culture, caste, creed and all. Nowhere on earth does humanity present itself in such a dazzling क्रिएटिव बर्स्ट ऑफ कल्चर्स एंड रिलीजियंस रेसेस एंड टंग्स। हमारे जो इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ हमें अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं। वी विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस इन अवर इंडिया, ओनली वी विल not find different types of languages in any other country. Home to the ancient Indus Valley civilization and a region of historic trade roots and vast empire, the Indian subcontinent has been identified with its commercial and cultural wealth for much of its long history. जो हमारी एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स है, बड़े एम्पायर्स एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, दे ऑल हैव बीन identified with its commercial and cultural wealth for its much of its long history. ये हमारी जो चीज़ें हैं हमारे टाइम से still we know all the things and it's continued from the long history. High mountain ranges, vast seas, large river irrigated lands, countries, rivers and streams, dark forests, sandy deserts, all this have adorned India with an exceptional diversity. ये जो चीज़ें हैं माउंटेन रेंजेस रिवर्स अनकाउंटेबल रिवर्स है हमारी इंडिया में, स्ट्रीम्स फॉरेस्ट डेजर्ट्स, ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं इंडिया की, सबको अट्रैक्ट करती है. Among the people there are numerous races, religions, languages and dialects. हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइप्स के पीपल हैं, रेसेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस है, मदर टंग है, सबकी डिफरेंट है. In course of time they wove themselves into the intricate fabric of India's social life. एंड हम सब की जैसे हमारे कल्चर है, हमारी रीति रिवाज है, उस हिसाब से जो वियरिंग है, हर चीज़ जो हमारे कल्चर के हिसाब से है अलग अलग है. However, the real strength of Indian culture lies in its basic unity, vigor and the ability to contain an amazing diversity within itself. जो real strength है इंडियन कल्चर की, it lies in its basic unity. हम सब आज भी यूनाइटेड है एंड हम में एबिलिटी है कि वो जो डाइवर्सिटी हमें कंटेन करते हैं विद इन अवर सेल्फ, वी ऑल एक्सेप्ट कि हम सब यूनाइटेड हैं एंड हम एक दूसरे के कल्चर एंड फेस्टिवल है उनमें हम इन्वॉल्व होते हैं. In this country there are people who belong to opposite schools of thought. इस कंट्री में ऐसे पीपल हैं जिनके थॉट्स एकदम ऑपोजिट है. Yet it is this diversity that binds one Indian with another. और ये ऐसी डाइवर्सिटी है कि एक इंडियन को दूसरे इंडियन से बांध के रखते हैं. एंड द कंसेप्ट ऑफ वन बेसिक कल्चर एंड वन नेशन हैज़ कंटिन्यूड. और एक बेसिक कल्चर और एक नेशन का जो रिवाज चलता आ रहा है वो कंटिन्यू है आज के दिन में भी. Social life of Western India. You have already studied about the social life of Gujarat, and since Gujarat lies to the west of India, let us begin with social life of the people of the west. We have already studied the social life of Gujarat, so Gujarat is also a part of West Gujarat. So let us know about the social life of people from Gujarat. Despite having an extensive coastline, the cuisine of Gujarat is primarily a vegetarian cuisine. भले ही हम जो है गुजरात का जो एरिया है कोस्टलाइन के पास है, पर जो खाना पीना लोगों का वो मोस्टली वेजिटेरियन है. The staple diet of the people includes cereals, pulses, vegetables, clarified butter, ghee, milk, butter, etc. लोगों के स्टेपल डाइट में सीरियल्स मीन्स व्हीट, ज्वार, बाजरी, पल्सेस मीन्स मूंग दाल, चना दाल, ऐसी सब दालें, वेजिटेबल्स, क्लैरिफाइड बटर मतलब घी, मिल्क मतलब दूध, बटर मिल्क मतलब छाछ और बटर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है.
काठियावाड़ी मील्स एंड दाल बाटी आर वेरी पॉपुलर। काठियावाड़ी मील्स और दाल बाटी है वो बहुत ही पॉपुलर है। ड्यू टू इट्स वास्ट कोस्ट लाइन, पीपल लिविंग इन द वेस्टर्न इंडिया कंज्यूम एग्स, फिश एक्सेट्रा। और वेस्टर्न इंडिया की वास्ट कोस्ट लाइन की वजह से जो पीपल वहाँ पे वेस्टर्न इंडिया में रहते हैं वो लोग एग्स और फिश ज़्यादा खाते हैं। Men wear a dhoti, Jodhpuri trousers, chino pajamas, loose from the waist to the thigh and tight from things to the ankle, and a short plaited frock shirt, अंगरखो और a kurta। अब यहाँ पे मेंस वो धोती एंड जोधपुरी ट्राउजर एंड शॉर्ट प्लीटेड शर्ट वेयर करते हैं। दे ऑल्सो कैरी अ स्टोल ख्यास ऑन देयर शोल्डर्स, और वो अपने शोल्डर्स पे स्टॉल भी रखते हैं। वुमन वेयर साड़ीज, वुमन है वो साड़ीज पहनती है। इन राजस्थान मैन वेयर अ धोती एंड अ शॉर्ट प्लीटेड फ्रॉक शर्ट अंगारखो, और राजस्थान में लोग क्या पहनते हैं, मैन होते हैं वो धोती पहनते हैं और शॉर्ट फ्रॉक शर्ट जैसा पहनते हैं, उसको अंगारखो कहते हैं। वुमन वेयर कलरफुल प्लीटेड एंकल लेंथ स्कर्ट्स, जिसको घाघरा कहते हैं। वुमन क्या पहनती है, कलरफुल होती है, उनकी प्लीटेड होती है जो एंकल लेंथ की होती है स्कर्ट्स के जैसी, जिसको वो घाघरा कहते हैं। और लॉन्ग वेस्ट लेंथ ब्लाउजेस, और जो ब्लाउज होता है वो लॉन्ग वेस्ट लेंथ का होता है। और इन महाराष्ट्र वुमन वेयर द 9 यार्ड डिवाइडेड साड़ी, महाराष्ट्र में वुमन 9 यार्ड डिवाइडेड वाली साड़ी पहनते हैं, जिसको नौवारी कहा जाता है। पीपल ऑफ रूरल एरियाज एंड ट्राइबल्स ड्रेस अकॉर्डिंग टू द रीजन दे लिव इन, जो रूरल एरियाज के लोग हैं और ट्राइबल्स एरिया के लोग हैं वो ड्रेस पहनते हैं। जो कैसे पहनते हैं, वो बहुत ही सिंपल टाइप के ड्रेस पहनते हैं, जो अपनी रीजन के हिसाब से जहाँ वो रहते हैं उस हिसाब से वो ड्रेस पहनते हैं। द हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन एंड cement. Houses are made of brick, stone and cement in this region. Tribals of the forest and hilly areas live in huts made of bamboo and teak branches scattered over the area they live. Tribal people live in stray huts made of bamboo and teak branches. In the villages of Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh, the houses are made of sand, stone, bricks and cement. In villages, houses are made of clay, dung, stone, bricks, cement and sand. Now see the 9.2, it's the outfit of Maharashtra, and in 9.3 it is the outfit of Rajasthan. See 9.4, it's a residence in forest area, and in 9.5 it's a modern residence. People speak Gujarati, Marathi, Konkani, Rajasthani and Hindi. People use local dialects in forest and tribal areas. Here people mainly speaks Gujarati, Hindi, Rajasthani, Marathi and Konkani languages. Some local dialects are spoken in tribal areas. Now let's see about festivals and fairs. पीपल इन इंडिया एंजॉय फेस्टिवल्स, इंडिया के लोग फेस्टिवल्स को खूब एंजॉय करते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर, यहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं। द रास एंड गरबा ऑफ गुजरात आर वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। रास गरबा ऑफ गुजरात आर वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। द फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ राजस्थान आर डिफरेंट, स्पेशली द घूमर। द लावनी ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो फेम्ड। Ghumar of Rajasthan and Lavani of Maharashtra are well-known folk dances in all over country. The fairs of Tarnetar, Bhavnath, Shamlaji, Deng Darbar are well-known. Festivals like Diwali, Ganesh Chaturthi, Eid, Christmas, etc. are celebrated together by one and all. Here, Tarnetar, Bhavnath, Shamlaji, Deng Darbar, etc. are famous fairs. Here the people celebrate the festivals like Diwali, Navratri, Ganesh Chaturthi, Holi, Eid, Christmas, etc. Now let's see about the social life of the people of North India. The staple food of the people of North India is wheat paste. They also consume pulses, vegetables, fruits, clarified butter, milk and buttermilk. Lassi, sweetened buttermilk of Punjab, is a delight to the taste buds. Here people use the dishes made of wheat, pulses, vegetables, fruits, ghee, milk, curd, buttermilk, etc. Lassi and other items of Punjab are famous all over the country.
पंजाब इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब को 5 रिवर्स का लैंड कहा जाता है। द पीपल आर स्टडी एंड हार्ड वर्किंग। यहाँ के लोग स्टडी और मेहनतू हैं। Men and boys wear loose pants और slacks with a collared shirt और टी-शर्ट। यहाँ के जो मैन हैं और बॉयज़ हैं वो लूज पैंट्स पहनते हैं या स्लैक्स पहनते हैं और ऊपर कॉलर्ड वाली शर्ट पहनते हैं या टी-शर्ट पहनते हैं। Some males also wear the कुर्ता पजामा जैकेट एंड इंडियन शर्ट पैंट आउटफिट। और कुछ मेल्स कुर्ता पजामा और उसके ऊपर जैकेट पहनते हैं, वो जैसे इंडियन शर्ट पैंट आउटफिट होता है वैसे। स्पेशली द पंजाबी फार्मर। और इस टाइप के जो कॉस्ट्यूम्स है वो स्पेशली पंजाबी फार्मर्स पहनते हैं। मैनी पंजाबीज मेनली सिख्स वेयर द टर्बन ऑन देयर हेड। ज़्यादातर पंजाबीज मेनली जो सिख होते हैं वो टर्बन्स पहनते हैं पग अपने हेड के ऊपर। द वुमन वेयर सलवार कमीज विथ ब्राइट कलर्ड दुपट्टा। जो वुमेन्स हैं वो सलवार कमीज पहनती हैं और उसके ऊपर ब्राइट कलर का दुपट्टा पहनते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। जम्मू और कश्मीर है वो उसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ही फेमस है। सिंस टाइम इमेमोरियल एंड हैज़ बीन एप्टली डिस्क्राइब्ड एज हेवन ऑन अर्थ। जम्मू एंड कश्मीर को हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है, अर्थ का हेवन। Costumes of Jammu and Kashmir are well known for their embroidery and intricate designs। और जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉस्ट्यूम्स है वो उसकी एम्ब्रॉयडरी और उसकी डिज़ाइंस के लिए बहुत ही वेल नोन है। द फॉर्म ऑफ क्लोथिंग इज डिज़ाइन टू काउंटर द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ द रीजन। और जो वहाँ की क्लोथिंग का फॉर्म है वो वहाँ के कोल्ड क्लाइमेट को मध्य ध्यान में रखते हुए वो बनाया गया है। द ट्रेडिशनल पैरन लॉन्ग ट्यूनिक स्ट्रेचिंग अप टू देयर फीट विथ फुल लॉन्ग स्लीव्स। और ट्रेडिशनल पैरन क्या है, जो लॉन्ग स्ट्रेचिंग अप है उनके फीट तक का फुल है और उसकी लॉन्ग स्लीव्स है। इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रेस अमॉन्ग बोथ मैन एंड वुमेन। और वो ड्रेस दोनों ही मैन और वुमेन में पॉपुलर है। दे ऑल्सो वेयर मुगल टाइप टर्बन्स। मैन मुगल टाइप टर्बन्स पहनते हैं। और हेड गियर कलर स्कार्फ वो होता है तिरंगा, वो वुमेन्स पहनती है उनके हेड के ऊपर। वेरिएशंस इज सीन इन देयर आउटफिट ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। और मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से उनके कॉस्ट्यूम्स में वेरिएशंस दिखती है। See on page number 71, most of the houses in North India have terraces and are made of bricks, wood, stones and mud. In the plains of North India, houses are constructed of mud, bricks, stones and cement, and they also have terraces. In cold mountainous regions, there are wooden houses with sloping roofs. The Dal Lake in Jammu and Kashmir is well known for its famed houseboats known as shikhara. People in Dal Lake in Kashmir live in a houseboat named shikharas. See, in picture 9.9, boat house, shikhara, the image of boat house is given. Hindi is widely spoken in North India. North India में हिंदी ज़्यादातर हिंदी बात की जाती है. But besides Hindi, Punjabi, Sindhi and Kashmiri languages are also spoken. Local dialects such as Bhojpuri, Bihari are spoken in Uttar Pradesh. Kashmiri, Urdu and Dogri languages are spoken in Jammu and Kashmir. Punjabi, Sindhi are spoken in Punjabi, and local dialects like Vraj, Awadhi, Bhojpuri, Bihari are spoken in Uttar Pradesh and Bihar. Festivals and fairs in northern India is celebrated with great fervor. जो भी festivals और fairs है northern India में हैं वो बहुत ही खुशी से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं. There are many festivals in the northern India that are celebrated by the people. और northern India में ऐसे बहुत सारे festivals हैं जो वो लोग बहुत ही हैप्पीली सेलिब्रेट करते हैं. द बैसाखी फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प बाय ऑल. और जो बैसाखी फेस्टिवल्स है जो पंजाबी लोगों का फेस्टिवल है वो तो पूरा नॉर्दर्न इंडिया बहुत ही हैप्पीली बहुत ही खुशी से मनाते हैं. भांगड़ा द फोक डांस ऑफ पंजाब इज लाइवली एंड लाइक बाय ऑल. और पंजाब का फोक डांस कौन सा है? भांगड़ा. और वो तो सबको ही पसंद है ना. देखो पिक्चर में दिखा रहे हैं भांगड़ा. The folk songs of Kashmir, devotional songs of Uttar Pradesh and Punjab are well known. Kashmiri folk songs, Bhangra dance of Punjab, devotional songs of Uttar Pradesh and Punjab are well known in northern India.
Now see the nature of the people of North India however differs. लेकिन जो नॉर्थ इंडिया के लोगों का नेचर है वो थोड़ा थोड़ा सबका डिफरेंट है. वाइल द पंजाबीज आर लाइवली एंड चीयरफुल, पंजाबीज है बहुत ही लाइवली और चीयरफुल, हमेशा ही खुश रहते हैं. लेकिन जो कश्मीरीज आर क्वाइट एंड पॉइज्ड, वो क्या है, बहुत ही क्वाइट रहते हैं, शांत स्वभाव के हैं. जबकि पंजाबीज क्या करते हैं, बहुत ही हल्ला गुल्ला मचाते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं, ऐसे हैं. जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द पैराडाइज ऑन अर्थ फॉर इट्स अमेजिंग लैंडस्केप एंड स्कैनिक ब्यूटी. और जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको पैराडाइज, अर्थ का पैराडाइज माना जाता है, क्योंकि वहाँ की जो लैंडस्केप है बहुत ही अमेजिंग है और वहाँ की जो सीनरीज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है. और कश्मीर है वो वर्ल्ड फेमस है, क्यों, क्योंकि उसकी नेचुरल ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा है और उसको पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है. द एरिया इज़ अमॉन्ग द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस विद ब्यूटीफुल स्नो कवर्ड माउंटेन्स. और जो कश्मीर का एरिया है वो वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस में आता है और वो क्या है, ब्यूटीफुल स्नो कवर्ड है. उधर के जो माउंटेन्स है पूरे स्नो से कवर्ड है, वहाँ पे ग्रीन वैलीज है और नेचुरल लेक्स भी हैं. Jammu and Kashmir is bestowed with breathtaking natural beauty that can mesmerize anyone. जम्मू और कश्मीर है वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो सबको अट्रैक्ट कर देती है. वन कैन सी काउंटलेस गार्डन्स विद टेरेस्ड लॉन्स, और वहाँ पे काउंटलेस गार्डन्स मतलब बहुत सारे गार्डन्स हैं और सब जगह पे मोस्टली टेरेस्ड लॉन्स है, कास्केडिंग फाउंटेन्स है, मस्त मस्त फाउंटेन्स है, पेंट बॉक्स ब्राइट फ्लावर बेड्स है वहाँ पे, विथ रेयर फ्लावर्स इन द स्टेट. सारे अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स वहाँ पे आपको मिलेंगे. और मीन्स फ्लावर्स, वो फ्लावर की प्रिंट की हुई फ्लावर बेड्स शीट्स मिलती है वहाँ पे. हैंडीक्राफ्ट इज़ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट, और वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट है वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है स्टेट का. एंड हैज़ बीन ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सम ऑफ द आइटम्स ऑफ इंडस्ट्री आर पेपर मशीन, वुड कार्विंग्स, कारपेट, शॉल मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा. जो एम्ब्रॉयडरी है क्लोथ पे होती हैं, कारपेट्स ऑफ कश्मीर आर ऑल्सो वेरी फेमस. सैफरन इज प्रीडोमिनेटली कल्टिवेटेड है, और वो सैफरन के लिए भी बहुत फेमस है. मीन्स केसर भी वहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलता है. Agriculture and agriculture related activities is the principal occupation of most of the people of North India. In North India, most of the people are occupied with agriculture, and agriculture related activities are their principal occupations. Apart from agriculture, people are engaged in cottage and small industries too. And एग्रीकल्चर के अलावा लोग वहाँ पे कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज में भी एंगेज्ड हैं. नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ साउथ इंडिया. द पीपल ऑफ साउथ इंडिया आर बेनिफिटेड बाय अ लॉन्ग सी कोस्ट. जो साउथ इंडिया के लोग हैं उधर वो लोग बेनिफिटेड है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग सी कोस्ट है. दे आर शॉर्ट एंड स्टडी इन बिल्ट, और वहाँ पे ज़्यादातर बिल्डिंग्स कैसी है, शॉर्ट एंड स्टडी. राइस इज द स्टेपल डाइट with fish being an integral component of coastal South India. As paddy is the main crop, rice is the staple diet of South India. They prefer to eat on banana leaves on all important occasions, और ज़्यादातर हर important occasions में वो banana leaves पे खाना रख के खाते हैं. इडली, डोसा, सांबर, वड़ा are some of the famous food items. South Indian cuisine is very well known and popular. The people take items like rice, idli, dosa, etc., which are made of rice. Besides this, they use sambar, vada, chutney, pulses, coconut, fish, vegetables, etc. as food. Here, coffee is a very popular drink. See, this is a diet of the people at South India. See how they have kept the food on banana leaf. South Indian women traditionally wear the sari and adorn their hair with sweet-smelling garlands of flowers. The men wear either a white dhoti or a colorful lungi. The fishermen wear clothes to suit their occupations. Males wear lungi or dhoti, pehran, khes and turban on head, while females wear sari in southern style, petticoat and blouse. Women adorn their hair with sweet-smelling garlands of flowers. Fishermen put on different dresses. Now see the residence. The houses are made of bricks, wood, bamboo,
stones and mud. They have sloping roofs as it rains heavily in these areas. Houses किससे बने होते हैं? In this region, houses are made of bricks, wood, bamboo, stones, mud and cement. और वहाँ पे क्या है? Sloping roofs हैं. In the areas of heavy rain, houses have sloping roofs. People residing near the coastal areas live in hut. और जो कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं वो हट में रहते हैं. द बैम्बू फर्नीचर यूज्ड इन दिस हाउसेज आर ब्यूटीफुली मेड. द बैम्बू फर्नीचर यूज्ड इन हाउसेज इज वेरी ब्यूटीफुल. हाउस बोट्स आर सीन इन द बैक वाटर्स ऑफ केरला टू. और वहाँ पे क्या हाउस बोट्स भी दिखते हैं बैक वाटर्स. पेज नंबर 73. डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन इन सदर्न इंडिया. अलग अलग लैंग्वेजेस सदर्न इंडिया में बोली जाती है. इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा आर वाइडली स्पोकन. English and regional languages like Telugu in Andhra Pradesh, Kannada in Karnataka, Malayalam in Kerala and Tamil in Tamil Nadu are spoken in South India. Famous for their passion for religion, tradition, customs and culture, people living in South India follow a very ritualistic lifestyle. वहाँ के लोगों का पैशन है, रिलीजन के लिए पैशन, ट्रेडिशन, कस्टम्स और उनके कल्चर के लिए जो उनका पैशन है, उसकी वजह से जो पीपल की लिविंग है साउथ इंडिया में वो बहुत ही रिचुअलिस्टिक, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही रिचुअलिस्टिक है. Therefore, festivals of South India make them popular all over the globe. इसकी वजह से जो साउथ इंडिया के फेस्टिवल्स हैं उसमें पूरे अर्थ में वो वर्ल्ड में वो फेमस हैं उसकी वजह से, उनके रिचुअलिस्टिक लाइफस्टाइल की वजह से. ओनम, पोंगल, बोट रेसेस, दशहरा एंड दिवाली आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म. ओनम है, पोंगल है, बोट रेसेस है, दशहरा है और दिवाली है. ये सब फेस्टिवल्स को बहुत ही ग्रेट एंथुसियाज्म के साथ सेलिब्रेट करते हैं. भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश, मोहिनीपट्टम and Kathakali of Kerala are famous dances of South India. Farming and fishing are the major occupation of the people there. The main occupation of people is based on farming and fishing. Paddy is the main crop of the region. और वहाँ का पैडी है वो मेन क्रॉप है उस रीजन का. People seek their livelihood through industries in the urban areas too. South Indian culture, with its visible differences in customs and traditions, forms an important part of the Indian culture. Educated people work in the offices as English and computer education are fairly widespread. People from this region are in large demand all over the world.